Good morning, students. Today we are going to discuss exercise question of NCERT book, page number 34. So first question we have, a solution turns red litmus blue, its pH is likely to be. अब देखो, जो रेड लिटमस होता है ब्लू में कब कन्वर्ट होता है, जब सॉल्यूशन कौन सा हो, बेसिक, और फॉर बेसिक सॉल्यूशन पीएच मस्ट बी मोर देन 7. So in three option pH is 1, 4 and 5, and last option we have 10 pH. So red litmus turns blue, it means basic है and more than 7. So last option we have more than 7 pH. So option is D. The solution react with crushed eggshells to give a gas that turns lime water milky. The solution contains एग शेल्स जो होता है वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और जब कैल्शियम कार्बोनेट किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो कौन सी गैस को इवोल्व करता है, CO2 को, जो कि टर्न कर देती है लाइम वाटर को मिल्की. तो इसमें से एसिड कौन सा है, HCl. नेक्स्ट है 10 ml of solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of given solution of HCl. 10 ml of solution of NaOH is completely neutralized by 8 ml of solution of HCl. If we take 20 ml of same solution of NaOH, इसका डबल कर लिया तो इसका भी डबल हो जाएगा, इसका मतलब वो क्या आएगा, 16 ml. Which one of the following type of medicine is used for treating indigestion? कौन सा यूज करते हैं, antacids, that is C. Write word equation and then balance equation for the reaction taking place when. So first part we have dilute sulfuric acid react with zinc granule. Dilute sulfuric acid react, this is dilute, react with zinc granule means solid, gives zinc sulfate plus H2. It is balanced equation. नेक्स्ट है, इसमें तुमने वर्ड इक्वेशन कैसे लिखनी है, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम लिखना है. वर्ड इक्वेशन में क्या आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक गिविंग जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये तुमने खुद करना है वर्ड इक्वेशन में. नेक्स्ट है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, डाइल्यूट प्लस मैग्नीशियम रिबन solid, there is formation of MgCl2 plus H2 gas. This is also, no, this is not balanced, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा. Now this is balanced equation. यहाँ पे तुमने क्या करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस मैग्नीशियम गिविंग मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस. नेक्स्ट इक्वेशन वी हैव डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4 डाइल्यूट प्लस aluminium powder Al. There will be formation of aluminium sulfate. We have studied the formula of compound in 9th class. So aluminium sulfate is Al2SO4 thrice plus H2. When we will balance this equation, there will be 2Al and 3H2SO4 and this side 3H2 and Al2SO4 thrice. वर्ड इक्वेशन तुमने खुद लिखनी है. नेक्स्ट है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl डाइल्यूट प्लस आयरन फिलिंग्स मीन्स आयरन क्या होता है, Fe सॉलिड, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ FeCl2, दिस इज आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 लगाएंगे हम. दिस इज बैलेंस इक्वेशन. नाउ वी हैव come to next question. Next है compound such as alcohol and glucose also contain hydrogen. I have already discussed these questions in previous notes. ये तुमने खुद करना है. अब नेक्स्ट है why does distilled water not conduct electricity whereas rain water does. देखो इसमें क्या होता है, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है
वो होता है प्योर वाटर, उसमें कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। अगर आयंस प्रेजेंट नहीं है इट मीन्स वहाँ पे कोई भी कंडक्शन नहीं होगी इलेक्ट्रिसिटी की। बट रेन वाटर में जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है प्रेजेंट और कार्बोनिक एसिड। वो कहाँ से आता है? क्योंकि एयर में क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं दैट कंबाइन विद रेन वाटर टू फॉर्म दीज आयंस। These acids and acid dissociate in water to give ions। और जब ये आयंस बनते हैं इट मीन्स वहां पे क्या होगी? कंडक्शन होगी इलेक्ट्रिसिटी की। नेक्स्ट है, इसका आंसर ये आएगा, ये प्योर वाटर इज वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड डज नॉट डिसोशिएट इनटू आयंस, देयरफॉर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। However, rainwater dissolve acids like carbonic acid and sulfuric acid. Actually, air contains traces of both carbon dioxide and SO2 gases, which dissolve in rain to produce corresponding acid. As a result, water become acidulated and ionized easily. Next है, why do acid not show acidic behavior in the absence of water? As we all know that acid behaves like an acid only in the presence of water। जब तक वो आयंस की फॉर्मेशन नहीं करेगा वो एसिड की तरह बिहेव नहीं कर सकता है। that's why acid show acidic behavior only in presence of water, and in absence of water it will not show any behavior because there will be no formation of ions। next है 5 solution ABCDE when tested with universal indicator shows pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively। which solution is neutral? न्यूट्रल कौन सा होगा? जिसकी pH क्या है? 7 है। strongly alkaline जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू दैट इज 11। weakly acidic जिसकी जो pH है वो 7 से कम है मगर ज़्यादा है, मतलब 4 है weakly acidic, और स्ट्रोंग जो weakly alkaline होगा वो कौन सा होगा? 9। नेक्स्ट है अरेंज द pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा किस में होगी? जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? 1, 4, 7, 9 एंड 11। सबसे पहले कौन सा आएगा? 1, 4, 7, 9 एंड देन 11। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, equal length of magnesium ribbon are taken in test tube A and B. Hydrochloric acid is added to test tube A while acetic acid is added to test tube B. In which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? अब देखो, एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ऐड किया? मैग्नीशियम रिबन के साथ HCl, और दूसरे में जो है हमारे पास एसिटिक एसिड है। जो एसिटिक एसिड होता है वीक एसिड होता है, और HCl है जो स्ट्रोंग है। तो स्ट्रोंग एसिड जो है वो ज़्यादा फास्ट रिएक्शन शो करेगा देन दैट ऑफ वीक एसिड। प्रोडक्ट दोनों में सेम ही बनेंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड, जैसे इसमें बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड और H2 गैस, और इसमें बनेगा मैग्नीशियम एसीटेट प्लस H2 गैस, ठीक है। बट स्ट्रोंग रिएक्शन किस में होगा? जहाँ पे स्ट्रोंग एसिड प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है फ्रेश मिल्क हैज़ अ pH ऑफ 6। हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड? जो pH है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो लैक्टोज प्रेजेंट होता है मिल्क में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड में। और जैसे एसिड की फॉर्मेशन होगी pH क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। वाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन? वो क्यों शिफ्ट कर रहा है एल्कलाइन, स्लाइटली एल्कलाइन? ताकि जो दूध है वो ज़्यादा टाइम तक वो ठीक रहे, मतलब वो कर्ड में कन्वर्ट ना हो। Here is answer of this question. We know that fresh milk is slightly acidic due to presence of lactic acid and its pH is 6. Upon standing, its pH slowly decreases and it becomes sour since more of acid to released. If baking soda is added to this milk, what will happen? The base release will neutralize the effect of lactic acid. So it will prevent the milk from getting sour. नेक्स्ट पार्ट है इसका, वाई डज दिस मिल्क टेस्ट अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड? टेक अ लॉन्ग टाइम, इसको ज़्यादा टाइम क्यों लगता है? क्योंकि जो बेकिंग सोडा है वो एसिड के इफेक्ट को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा,
and it take longer time to achieve acidic medium back to that milk may set as curd. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये तुमने खुद करना है. व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म salt and water, this is known as neutralization reaction. Give any 2 example. These are exercise question which we have studied in the chapter. Next जो क्वेश्चन छूट गए हैं वो अभी मैंने तुम्हें स्टडी करवाना है चैप्टर. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.